नमस्कार सभी को। सभी स्टेट कमीशन से गुजारिश है, आप प्लीज अपने सभी माइक बंद कर दीजिए। जो हमारे हॉल में उपस्थित लोग हैं, प्लीज सब अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दीजिए। बीच में कोई एक दूसरे से बात ना करे। और स्टेट कमीशन प्लीज आप अपने आप को तभी म्यूट करें जब हम आपको कहें अपने आप को म्यूट करने के लिए। क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में हम आपको अपने आप अनम्यूट कर देंगे। अब हमारी चेयरपर्सन मैम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम शुरू करेंगे। फॉर टुडेज we'll be using for today's lecture we'll be using bilingual language। हिंदी में भी बात करेंगे हम आपसे और इंग्लिश में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टेट कमीशन के पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर स्टेट से हैं। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम और ऑनरेबल मेंबर मैम, we have a special guest with us today. Special guest is Shri Sunil Kumar Lohani ji, Additional Secretary, Panchayati Raj. Then we have our Joint Secretary ma'am, all the officers of NCW, colleagues. I welcome you all today. Today we will be inaugurating an online lecture series that goes with the title Ignite. To begin with, I would request our member and our Joint Secretary ma'am to please felicitate sir, Shri Sushil Kumar Lohani sir. Ma'am, please. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Not taking much of the time, I request Joint Secretary ma'am to please give an introduction to our program Ignite, and also to our session that we'll be conducting, a first session that is scheduled for today for State Women Commissions. Over to you. A very good afternoon and a very warm welcome to all the participants who are present online. We have the representatives, we have the chairpersons and the members and the staff of the state commissions who have joined us online, and we also have our team NCW here present with us in the auditorium. So I would like to have a very brief introduction about this Ignite online lecture series which we are commencing today, and this is going to be inaugurated by our Honorable Chairperson ma'am. So in this rapidly transforming society, it is very essential that all the women in the country, their knowledge base is improved and their informed disclosures we have to facilitate, and we need to empower them. And so with this view, National Commission for Women are now starting this Ignite series. Ignite meaning inspiring growth, new ideas, transformation and empowerment of the women in the country. So this is just not an online series, but we intend this to be a vibrant space for reflection and dialogue. The objectives of this Ignite series is to educate and empower the participants who are present online with us on the essential domains of both social, legal, digital, economic and psychological issues. And this is also going to be a platform for thoughtful leadership and knowledge sharing, and to promote critical thinking, civic engagement and inclusive leadership. And above all, there is a need for gender advocacy and policy influence. So as I said, we have the participants from all the state commissions,
and we see them as the change makers. We also have the participants from our She is the Change Maker initiative. And this online session today, the first one, is going to be on the topic from complaint cell to change agent, the changing role of state women commissions. So today, I would like to invite our chairperson, Srimati Vijaya Rahatkar ji, to come here and deliver an address, this inaugural address, and enlighten us, and also the changing role of the commissions, from not just addressing the grievances, but how to empower the women and what is their crucial role and what is the learning that needs to go in with this. So I invite you, ma'am, onto the stage, and please deliver your inaugural address. Thank you. सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय महिला आयोग को बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से हम अपने सभी स्टेट यूनियन कमीशंस के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाली एक लेक्चर सीरीज आयोजन कर रहे हैं और आज इसी का उद्घाटन आज मेरे हाथों से ही हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी राज्य महिला आयोगों की अध्यक्ष, मेरे सामने बैठी हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की हमारी मेंबर, आज विशेष रूप में हमारे अतिथि बनकर यहाँ पे आए हुए पंचायत राज के हमारे सेक्रेटरी, सभी राज्य महिला आयोगों के सदस्य सचिव और सभी कर्मचारी, इन सभी का मैं इग्नाइट लेक्चर सीरीज में इसके पहले सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी के मन में आया होगा कि क्या है इग्नाइट? तो ये नाम ही अपने आप में एक प्रेरणा है। इग्नाइट मतलब इंस्पायरिंग ग्रोथ, न्यू आइडियाज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी विकास की प्रेरणा, नए विचारों की तलाश और उसके साथ साथ हम बदलाव का सफर करेंगे और सशक्तिकरण का, महिलाओं के सशक्तिकरण का हम एक बहुत अच्छा संकल्प भी लेंगे। मुझे आप सभी को यह कहना है कि इग्नाइट ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रयास है। ये प्रयास सोच को जगाने का, संवाद को दिशा देने का और उसी के साथ साथ बदलाव को जन आंदोलन बनाने का, ऐसा ये प्रयास है, यही इग्नाइट है। आज हम एक ऐसे मंच पर बात कर रहे हैं जहां पर हम सिर्फ बात न करें बल्कि हम समझें, साझा करें और हमारी दिशा भी तय करें। जब महिला आयोगों की बात आती है तो सबसे पहली बात क्या आती है? तो बात यही आती है कि बस कंप्लेन के लिए हमें वहां पे जाना है। आगे चल के थोड़ी सी बात आती है कि हाँ, कोई उनका हेल्पलाइन है क्या? उस हेल्पलाइन पे कंप्लेन करेंगे। और हमारे सामने एक ऐसा भी एक तस्वीर जरूर आ सकती है कि एक बहुत बड़ा टेबल जिसके ऊपर फाइलों से भरा हुआ वो टेबल भरा हुआ है, पीछे की व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे रही, ये बात कर रही है और कंप्लेन की ढेर की ढेर वहां पे लगी है। क्या केवल ही महिला आयोग का चित्र है? मैं आपको ये कहूंगी कि ये कोई केवल ही महिला आयोग ऐसा है, ऐसा कोई चित्र नहीं है। अब हमारे सभी के कमीशंस बहुत बदल रहे हैं, आगे जाते हैं और आगे चलते हुए वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी कमीशन दृढ़ संकल्पित है। मुझे विश्वास है कि आप सभी दृढ़ संकल्पित है। आपके पास जो कंप्लेंट्स आती है उन सभी कंप्लेंट्स को आप अच्छी तरीके से देखते हैं और उसको आप हल भी कर देते हैं।
हम ये भी कहते हैं कि जब कोई नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो सबसे पहले हमारे नजर के सामने कौन आता है? तो वो आता है राष्ट्रीय महिला आयोग और उसी के साथ साथ आपके अपने सभी कमीशन। मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसे काम करता है। तो महिलाओं की सुरक्षा, उस सुरक्षा के साथ साथ उनके पास जो उनकी तरफ से जो कंप्लेंट्स आती है उस कंप्लेंट्स का पूरा निस्तारण और उसके साथ साथ हम उसका समाधान हम कर देते हैं। अगर कमीशन की कोई पहचान है तो समय के साथ कंप्लेंट्स का निस्तारण और उनका समाधान, ये आज हमारी पहचान बन रही है। तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं सम्मान की भी, जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने वाले जो कानून है उस कानून के बारे में बात हो, उस कानून के बारे में जागरूकता निर्माण हो, इसके लिए भी हम काम करते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए अनेक सरकारी योजना है। उन सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रीति से हो, इसके लिए भी हम देखते हैं। आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकती हूँ कि चाहे आवास योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, या उसी के साथ साथ जो स्टेम की हम बात करते हैं, जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ऐसा जो हमारा स्टेम है, इस स्टेम में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी लड़कियों की संख्या 43% से भी अधिक ज्यादा है और महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आज आपके सामने मैं उस सशक्तिकरण में कुछ एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करूंगी, जिससे हमें हिम्मत आएगी, जिससे हमें बिल्कुल ध्यान में आएगा कि किस दिशा में, अच्छी दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आज मैं आपके सामने बात रखूंगी लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी की, जो राष्ट्रपति जी की, महामहिम राष्ट्रपति जी की पहली महिला एडीसी है। हमने अभी भी उनके बारे में सुना। मैं आज बात करूंगी आपके सामने कैप्टन शिवा चौहान की, जो सियाचिन में तैनात होने वाली हमारी पहली महिला अफसर है। और आज मैं आपके सामने बात करूंगी डॉक्टर एन कलई सेल्वी की, जो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। मैं बात करूंगी डॉक्टर ऋतु करिहल की, जो चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर थी। और मैं बात करूंगी आज रुचिरा कंबोज जी की, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि है। मैं आज आपके सामने बात करूंगी मेजर राधिका सेन की, जो संयुक्त राष्ट्र में जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जिनको मिल चुका है। और उसी के साथ साथ मैं आज बात रखूंगी मेजर ईशा ठाकुर और मेजर जगमीत कौर की, ड्रोन ट्रेनिंग की पहली महिला इंस्ट्रक्टर वो है। और उसी के साथ साथ गुरित मोंगा जी, जो है भारत की पहली ऑस्कर विजेता महिला प्रोड्यूसर है। और ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी जी भी, और सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जी की। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, वो हमारे देश की 2 बेटियां, जिन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश के सामने रखा था। आज यही महिला सशक्तिकरण है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख रहे हैं। आज हम ये कहते हैं कि आंगन से लेकर अंतराल तक हमारे देश की बेटियां, देश की महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। यही है महिलाओं का सम्मान। और जब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, तब हम बात ये भी करते हैं कि हमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है महिलाओं के लिए कि कैसी है हमारे देश की महिलाएं, तो वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में, ना ज्यादा में, ना कम में, ना ज्यादा में, वो सबके बराबरी की अधिकारी है। वो सब में बराबरी की अधिकारी है। और इसी तरीके से हमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना है, जिसके लिए आज मैं, हमारे सभी कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हमारे सभी कमीशन कटिबद्ध है। इसीलिए मुझे आपको एक बात कहनी है कि अब इसीलिए अब हमारा रोल बदल रहा है। हमारा रोल बहुत कुछ बदल रहा है। जो चित्र हमने पहले देखा था
कि केवल कंप्लेंट्स को देखने वाला महिला आयोग है, ये न रहते हुए उस कंप्लेंट्स का निस्तारण करने वाला, समाधान करने वाला, उसी के साथ साथ महिलाओं को सम्मान देने वाला और सशक्तिकरण करने वाले ऐसे हमारे कमीशन अब बन रहे हैं। हमें उस नए रोल में अब जाने की बहुत जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग खुद काम कर रहा है, पर हम इसी विषय पे विश्वास रखते हैं कि प्रदेशों के हमारे सभी कमीशन इसी तरीके से काम करेंगे। उन सभी कमीशन को हम सक्षम बनाएं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करें और राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ सभी प्रदेशों के कमीशन भी उतना ही अच्छा काम करें जितना राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम आगे बढ़े। मुझे आज आपको ये भी कहना है कि हम जिस रोल बदलने की मैं बात कर रही हूँ, हम नई भूमिका में हम जाने की हम बात कर रहे हैं, उसका कारण भी क्या है? तो आज हम देख रहे हैं कि आज हम सनराइज इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। उस सनराइज इंडस्ट्री में एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, उसी के साथ साथ हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्वांटम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हम देश की सफल चांद्रयान मुहिम की बात करते हैं। ऐसे अनेक अनेक विषयों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं सनराइज इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए इसी विषयों में हम काम भी कर रहे हैं। पर हम ये भी देख रहे हैं कि इसी की वजह से आज हमारे देश में अनेक अनेक सामाजिक बदलाव को हम फेस कर रहे हैं, पारिवारिक बदलावों को भी हम फेस कर रहे हैं और नए तरीके से समस्या भी हमारे सामने आ रही है। हमें इन सभी बदलावों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए हमें अब सभी के साथ मिलते हुए, हैंड होल्डिंग करते हुए हमें पॉजिटिवली अनेक अनेक काम करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सबने मिलकर आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आपको ये भी कहूंगी कि हमारा जो दायरा है कामों का, इसको हमें बढ़ाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मुझे हमारे जो स्टेट विमेन कमीशन है उनके बारे में ही कुछ कहना है। हमारे प्रदेशों के जो कमीशन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज उसी के लिए काम बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं जब महाराष्ट्र की बात करती हूँ, मैंने शुरुआत महाराष्ट्र से करी है क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ। जब मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो लीगल एड क्लिनिक्स और पैरालीगल ट्रेनिंग का बहुत अच्छा अभियान आज महाराष्ट्र में स्टेट विमेन कमीशन के माध्यम से चल रहा है। मैं जब केरला की बात करती हूँ तो केरला में एक ऐसा मॉडल जो पीड़िताओं को, पुलिस और समाज को साथ लाकर एक नए भरोसे की नींव रख रहा है। शादी से पहले और शादी के बाद रिश्तों में संवाद आने चाहिए, रिश्तों में समझ आनी चाहिए, इसकी एक नए तरीके से वहां पे काउंसलिंग की जा रही है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही चैलेंज आता है कि बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है और दूर दराज गांवों में पब्लिक हियरिंग करना और एसएसजी आधारित कानूनी जागरूकता करना, ये बहुत अच्छा काम आज उत्तराखंड का हमारा कमीशन कर रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि लोकतंत्र की असली ताकत आज हमारा उत्तराखंड का कमीशन बता रहा है, दिखा रहा है। जब मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो महिला सुरक्षा रथ जैसे अनेक नए पहल की शुरुआत आज वहां पे हो रही है। खुद चलकर आज गांव में राजस्थान का विमेन कमीशन जा रहा है। जब हम असम की बात करते हैं तो विच हंटिंग जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आज साइको लीगल काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से आज हमारा असम का कमीशन कर रहा है। ये सिर्फ कानून नहीं है, तो सामाजिक चेतना का एक बहुत अच्छा काम आज हमारा असम का कमीशन कर रहा है। हम जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो महिला किसानों को नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट में आज आंध्र प्रदेश प्रशिक्षित कर रहा है। सबला के माध्यम से जहां छात्र और वॉलंटियर्स के साथ जन जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आज आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं। अभी बीच में मैं तेलंगाना होके आई
जिस तरीके से तेलंगाना की हमारी अध्यक्ष और कमिश्नर गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ये बहुत ही अतुलनीय ऐसा काम आज हमारा तेलंगाना का कमिश्नर कर रहा है। और जब हम नागालैंड, उसी के साथ साथ मणिपुर जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कमीशन की हम बात करते हैं, अरुणाचल की बात करते हैं, सभी कमीशन की बात करते हैं, तो कुटीर उद्योगों में महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम कैसे दे सकते हैं, उनका हाथ पकड़ते हुए हम कैसे आगे चल सकते हैं, हम जरूर हम सोच रहे हैं। और मणिपुर में आज राहत शिविरों में जाकर महिलाओं को हिम्मत देने का काम हमारा स्टेट वुमेन कमीशन कर रहा है। और अगर मैं गोवा की बात करती हूँ तो गोवा का कमीशन हर जगह पे आगे आते हुए काम करता है, चाहे वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो या उसी के साथ साथ स्कूल कॉलेज में जाते हुए गोवा पुलिस के साथ चलते हुए जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम आज गोवा में हो रहा है। आज स्वयं पूर्ण महिला का एक ऐसा अभियान जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, ये अभियान भी आज गोवा में चल रहे हैं। अन्य भी मेरे अनेक कमीशन यहाँ पे आए हैं, मुझे आपके लिए भी बात करनी है, पर समय का अभाव है। मैं आप सभी को ये कहूंगी कि चाहे मेरी आपके लिए बात हो या ना हो, ये बात आप सभी के लिए है, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य कमीशन का जो काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाओं को जता भी रहे हैं। साथियों, ये जो प्रयास मैंने अभी आपको बताया, ये केवल और केवल विमेन कमीशन की कोई योजना नहीं है, तो ये संघर्ष से सफलता तक की ये कहानियां है कि किस तरीके से हमारे सभी स्टेट के विमेन कमीशन आज काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि हमारे सभी ये कमीशन हमारी बहनों को, हमारे बेटियों को न सिर्फ अधिकार दे रहे हैं बल्कि आत्मविश्वास दे रहे हैं। इस आत्मविश्वास का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा आज का समय का स्टेट है, समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, काम भी बहुत ज्यादा है, पर आज उत्तर प्रदेश में हमारी अध्यक्षा के नेतृत्व में गांव-गांव प्रवास हो रहे हैं। मेंबर के पास उन्होंने जिले बांट दिए गए हैं और वो मेंबर्स अपने जिलों में लगातार प्रवास करती है। अध्यक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवास करती है और आज मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, पर वहां पे जो कंप्लेंट्स आई थी, लगभग उन्होंने अपने यहाँ की कंप्लेंट्स को उन्होंने नील कर दिया है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये जो कहानी है, ये संघर्ष से सफलता तक लेके जाने वाली कहानी है और इसी तरीके से हमारे सभी आज जो कमीशन है वो काम कर रहे हैं। मेरी सभी सहेलियों, आपको याद होगा कि जब महिला आयोग की स्थापना हुई थी, तब उसका मुख्य उद्देश्य था पीड़िताओं को न्याय दिलाना। हमने वो काम बहुत निष्ठा के साथ हम आज कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। चाहे घरेलू हिंसा हो, दहेज हो या कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो, ऐसे अनेक विषयों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब समय है हमारे आगे बढ़ने का। अब समय है शिकायत पेटी से आगे चलते हुए परिवर्तन के केंद्र बनने का। इसलिए आज हमारे कमीशन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये कहूंगी कि आज हमारे देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की हम बात करते हैं और हम काम भी करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में आंगनबाड़ी से लेकर पंचायत स्तर तक देश के प्रत्येक गांव को आज हम सशक्त बना रहे हैं, वहां के महिलाओं को साथ लेकर हम चल रहे हैं। मंगलयान पर जाना या फाइटर प्लेन चलाना या ट्रेन चलाना, ये हमारे लिए आम बात है और ऐसे सब बातों को लेकर आज की जो विषय है उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथियों, हमारा सफर अब कैसा रहेगा? तो हमारा सफर रहेगा हमारे कामों का नया विस्तार करने का। किस तरीके से हम अपने कामों को विस्तार कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आज
आपके सामने जरूर बात करूंगी। आपके अपने कमीशन के यहाँ आपका एक मॉडल है समस्याओं का समाधान करने का। आप अपने स्टेट के अनुसार उसको आप जरूर चलाइए और उसी के साथ साथ नए आह्वानों को, नए चुनौतियों को समझकर हम आगे भी बढ़े। आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो नए काम किए जा रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ जरूर बात करूंगी। आप सभी को पता है कि शुरुआत में मैंने बात करी थी, जो एआई की बात करी थी, शालीन यूनिवर्सिटी की बात करी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि हम भी एआई में काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेंगे। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस विषय में काम कर रहा है और महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बना रहा है। महिलाओं को एआई का ज्ञान दिया जा रहा है जिससे वो प्रतिदिन अपना काम आसानी से करे। जब एआई की बात आती है तो हमें सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जो साइबर कंप्लेंट्स आती है, यही हमारे दिमाग में आता है। पर मैं आपको ये भी कहूंगी कि समस्या जितनी बड़ी है उससे भी ज्यादा अच्छा उसका समाधान निकालना चाहिए। हमने सोचा कि समस्या सामने आ रही है पर उस समस्या को हम टैकल करेंगे। हमारे हर एक बहन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम ज्ञान देंगे ताकि वो ऐसी समस्याओं से दूर रहे, उससे बचे और अपना जो काम है उस कामों को लेकर वो एआई का काफी अच्छा उपयोग करे। आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यशोदा एआई जो कार्यक्रम कमीशन ने शुरू किया है, इस कार्यक्रम के अनेक पहलुओं पर हमने ध्यान रखा है। हमने हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके साथ हमने काम किया, उसी के साथ साथ हमारे आंगनबाड़ी सेविका है हमने उनको भी बताया, उन्हीं के साथ साथ डब्ल्यूसी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है हमने उनका ट्रेनिंग किया और हर क्षेत्र में आज यशोदा एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैंपस कॉलिंग नाम का हम एक कार्यक्रम करते हैं, जो कॉलेज में जाने वाले जो युवक और युवती है उनके लिए कार्यक्रम होता है जो है कैंपस कॉलिंग। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हजारों की संख्या में आज इस कैंपस कॉलिंग में युवक और युवती आते हैं और कानून को समझ कर आगे बढ़ते हैं, समझदारी के साथ काम भी करते हैं। ये तो कमीशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज तक 200 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। आज बहुत समाधान की बात है कि आज भारत सरकार का पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है उनके साथ हम आज बात कर रहे हैं कि देश की जो महिलाएं हैं, जो सरपंच है, जो 3 टायर सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम मिलके और भी काम कैसे आगे कर सकते हैं, मिलके और भी इस दायरे को कैसे बढ़ा दे सकते हैं। जो हमारी त्रिस्तरीय जो बहनें हैं जनप्रतिनिधि, इनके लिए जानकारी का, इनका प्रशिक्षण करने का ये कार्यक्रम है शीज चेंज मेकर। और हमारे ध्यान में आ रहा है कि इन बहनों को साथ लेकर हम बहुत देश में, गांवों में बदलाव कर सकते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग जो सिस्टम है उसके ऊपर भी मैं आज बात करूंगी। प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किए हैं जिसका नाम है तेरे बड़े सपने। मुझे आज कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने इस कंसेप्ट को डेवलप किया। हम ये देखते हैं कि जब हमारे फैमिली में कुछ अड़चनें आती है तो उसके बाद उसको समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक व्यवस्था है। आपका कमीशन है, हमारा कमीशन है, उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फैमिली कोर्स भी है। पर ये समस्या ही ना आए, दोनों पति पत्नी खुशी के साथ साथ रहे, इसके लिए पहले क्या प्रयास होते हैं? तो ध्यान में आता है कि वो प्रयास बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। हैप्पी मैरिजेस के लिए भी कुछ काम करने की जरूरत थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने की शुरुआत करी, जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स है। मुझे आज कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश भर में 25 सेंटर्स शुरू हो गए हैं जो कलेक्टर्स के माध्यम से चल रहे हैं, वहां की जो महापालिका है उसके माध्यम से चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में जो विमेन डेवलपमेंट सेल है वो भी कर रहे हैं और एनजीओ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुझे आज आपको ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास
अभी लगभग 100 से भी अधिक ज्यादा प्रपोजल्स है जहां पे तेरे मेरे सपने शुरू करने हम जा रहे हैं। जो मैंने नए विस्तार की बात आपके साथ करी, हमें महिलाओं का कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है, उनको अपने पैरों पर भी खड़ा करना है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में एक बहुत बड़ा काम भी शुरू किया है। आज हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। हम राजस्थान में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम गुजरात में कार्यक्रम कर रहे हैं, और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि राजस्थान की हमारी जो डेयरी सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं थी, उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमने अभी गुजरात में बनास डेयरी में अमूल के साथ हमने किया है, ताकि अमूल और सरस मिलके बहुत अच्छा सरस काम करें। इसके लिए भी प्रयास हम कर रहे हैं। पंचायत से पार्लियामेंट एक बहुत अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए आप सभी ने बहुत ध्यान देके काम भी किया है। देश की जो हमारी 3 टायर सिस्टम में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनके लिए ये हम कार्यक्रम करते हैं हर साल, और ये कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में होता है, वहां पे बहनें आते हुए बात करती है। ऐसे अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि जैसे कमीशन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम आप के माध्यम से भी हो सकते हैं। आप भी अपने प्रदेशों के अनुसार आपके यहाँ इस तरीके से कार्यक्रम कर सकते हैं, ताकि महिलाओं के साथ अधिकाधिक आप जुड़ पाए। महिलाओं में जागरूकता निर्माण करने के लिए कानून की बात हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, तभी सही मायने में उनका सशक्तिकरण हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि हम सभी सुरक्षा और सम्मान के लिए, महिलाओं के लिए हम प्रतिबद्ध है। और जब मुझे यह भी लगता है कि जब महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, सम्मान मिलता है, तो निश्चित ही उनका सशक्तिकरण होता है। अब हमें उस सशक्तिकरण की दिशा में हमें बढ़ना है। मुझे आपको ये भी कहना है कि हम आज के समय पे एक पल रुकेंगे, हम सोचेंगे कि हमें आगे चल के कैसे काम करना है। हम सोचकर कुछ योजना बनाएंगे, क्योंकि योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से और संकल्प से सिद्धि के साथ जोड़कर हम न सिर्फ विकसित भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे, बल्कि हम अपने कर्तव्यों को भी पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पक्के अच्छे तरीके से हो सकता है। मैं आपको ये भी कहूंगी कि अब हमें हमारा दायरा बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं 3 सी के बारे में फिर से बोलूंगी कि हम 3 सी के ऊपर बात करते हैं। फ्रॉम कंप्लेंट टू कैपेसिटी बिल्डिंग, फ्रॉम कैपेसिटी बिल्डिंग टू चेंज मेकर, चेंज एजेंट के रूप में हमें आगे बढ़ना है। हम सब लोग इस विषय में काम करने वाले कैटलिस्ट है। हमारी भूमिका अगर देखने में साइलेंट है, पर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैटलिस्ट बनते हुए हम काम कर सकते हैं। और आखिर में तो मैं ये कहूंगी कि हम सभी लोग बदलाव के अग्रदूत है। बदलाव की शुरुआत हम करेंगे, हम सबसे आगे रहेंगे। अगर कमीशन आगे रहते हैं तो अपने आप में हमारे देश की बहनें भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उनके साथ न्याय के साथ साथ हम उनको सशक्त भी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो बदलाव है, सिर्फ कंप्लेंट न लेते हुए आगे चल के महिलाओं के विषय पे अभ्यास करना है, रिसर्च करने हैं, उसके बारे में बात करनी है। इन सभी विषयों को हम अच्छे तरीके से देखेंगे और अपने अपने कमीशंस को हम आगे बढ़ाएंगे। और अपने प्रदेश में एक महिला आयोग कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है, महिलाओं के साथ चल सकता है, इसकी एक अच्छी भूमिका हम निभाएंगे। इतना ही मुझे आज आपके लिए कहना है। इन सभी कामों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। इसी विषय में अभी हमने जो बात करी है, अगर इस विषय पे आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम वो जरूर कर सकते हैं। आने वाले
अगले 5 मिनट में हम उस विषय पे बात करेंगे। अगर आपको कुछ कहना है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। आपका माइक अभी ओपन है। किसी के कोई सवाल है? शायद माइक उनका ओपन नहीं हो रहा है, देख लीजिए एक बार। रेनू भी ट्राई कर रही है। आपके माइक ओपन है अभी? आवाज किसी के प्रश्न है इस विषय में, किसी को बात करनी है तो आप वो रख सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी के कोई प्रश्न नहीं है। रेणु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बात कर सकते हैं, एक बार बात करिए। नहीं, उनकी माइक ही नहीं ओपन। हेलो, हाँ, अभी आई। आ रही है दीदी? आवाज आ रही है? पूरा सुना है पूरे स्टाफ के साथ, बहुत अच्छा रहा। कोई प्रश्न उत्पन्न होगा, कोई उत्तर चाहिए होगा तो विचार करेंगे। अभी रैंडम कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो मैंने बात आपके सामने रखी है उस विषय पर आप सभी लोग विचार करेंगे, और विचार करके फिर से हम कभी एक दिन बात करेंगे। तो अभी किसी का कोई विषय नहीं है तो हम, मुझे लगता है कि मैं मेरा वक्तव्य पूरा कर लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपने काफी विस्तार में हमारे स्टेट कमीशंस को बताया, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपने बताया। मैं बस अगर कोई क्वेश्चन नहीं है स्टेट कमीशंस का तो मैं उनसे बस एक ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आज मैम ने बोला है, आप लोग अपने ऑफिस में जब कल मिलेंगे आपस में तो प्लीज इस पे चर्चा करें, और जो आप नया सोचते हैं, जो आप इनिशिएटिव्स और नया सोचते हैं कंप्लेंट्स के अलावा डील करने के लिए, वो आप हमें जरूर लिख के भेजें मेल पे। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।